Hello and Jai Hind, everyone. I'm Major Mohammed Ali Shah, and it's my proud privilege and honor to welcome a very, very special guest with us this evening who needs no introduction at all. And she's a renowned psychologist, a renowned doctor of the country. She's contributed in in setting up and founding the psychology department at the most famous and popular Manav Rachna International University in Faridabad. She has also been the founding member of the management department in Faridabad, and right now she's the founding director of her own setup, of her own. She mastered in she. I would not say I would say super masters in psychology, and I could not have had a better person on the World Mental Health Day to speak to. Doctor Jai Hind, and thank you very much for spending time. Thank you. It's always an honor, and you're one person जिनको सभी सुनना चाहते हैं. तो अरे आज how opposite हो गया. हाउ स्वीट डॉक्टर, हाउ स्वीट. और इत्तेफाक की बात है कि आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट रही हैं एट द साइकोलॉजी डिपार्टमेंट एट मानव रचना इंटरनेशनल. उन्होंने आज मेरे को दावत दी थी वहीं पे ही टू कम टू बी देयर विद देम ऑन द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, बट बिकॉज ऑफ द Israel Hamas Palestine conflict going on, so I've been on live since लास्ट 2 days. कब नींद आई कब खाए पता नहीं, यहीं पे होता था खाना पीना सब कुछ मेरा. I couldn't move from there, but it was a golden opportunity missed, in fact, and I look forward to going there again. So anyhow, first let's start with what according to you is mental health actually. Okay. So yeah, question everybody asks. Mental health. If I will just turn it around and say, what according to you is physical health? It's the same answer. Our body, mind, everything goes together. This compartmentalization is just for convenience, but your body is an expression of your thoughts, your emotions, and your emotions and thoughts are affected by the body. So, what is visible? Your emotions and thoughts are visible through your body. That's your body is only the walking, talking, expressing part of your emotions and thoughts. And this is what mental health becomes. Mental health is it's the combined how you feel about yourself. And that is most important because we are not physiological beings. We are spiritual beings, we are mental beings, we are emotional beings, experiencing through a body. So mental health, I will shift it to mental fitness is what we are going to is what it means that do I feel good? Do I feel good living? Do I feel good about myself and people around me? And am I, I don't want to use the word cliched word happy, but am I finding that life is worth living? Right. You mentioned about the cliched word happy. तो अक्सर ऐसा होता है, हर एक के साथ हुआ होगा कभी. किसी को एक आपके जानने में यू somebody well known to you, कोई बीमारी हो गई, और someone comes sees ailment and you wonder, अरे इसको ये कैसे हो सकता है, ये तो अपना बड़ा सेहत का ध्यान रखता था. He was only so young. But he was a fitness freak. He was this, he was that. हाँ, सेहत का ध्यान रखता था, मगर क्या वो खुश था? That is क्या something वो again. एब्सोल्युटली क्या वो खुश था? और हमें कहीं लगता है कि अगर वो फिजिकली फिट है, देखिए हमें ना बचपन से हमें सिखाया है बॉडी को कैसे करें. पहले तो ड्रेसअप, खाना कैसा खाएं, ये भी हमारे लिए है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टाइप ही हैं कि हम कैसे करें, कैसे बैठें, किसके साथ बैठें. लेकिन किसी ने हमें ये नहीं बताया कि हमारे जो सबसे बड़े जो यहाँ इसको लेके चल रहे हैं, इसके साथ क्या करें. इतने सारे थॉट्स आते हैं, इतनी सारी इमोशंस आते हैं, इसको हम कैसे कंट्रोल करें, इसको हम कैसे स्ट्रीमलाइन करें. थॉट्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते ज़्यादा, बट इमोशंस, रिएक्शंस, इन सब को कैसे करें, क्योंकि यहीं से शुरू होता है और सब चीज़ें यहीं ख़त्म हो जाती हैं. वी दिस इज़ वेयर वी थिंक एवरीथिंग एंड दिस इज़ हाउ वी डिसाइड. थॉट्स, माइंड ही सब कुछ डिसाइड कर देता है. तो अगर मेरे थॉट्स चलते जा रहे हैं, देन मेरी बॉडी विल रिफ्लेक्ट. the body will tell you कि ये बंदा दुखी है, ये चीज कॉम्प्लिकेटेड है, यही सब चीजें. तो यही कारण है क्योंकि हमें किसी ने सिखाया ही नहीं. ये एक स्किल है और ये हमें सिखाई नहीं, बाकी चीजें हम सीख गए. इसलिए जब लोग कहते हैं वो तो ठीक लग रहा था, वो बॉडी से ठीक लग रहा था, बट अंदर उसके इतना चल रहा था कि
हम गेस ही नहीं कर पाए क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं है साइंस से। राइट, एब्सोल्युटली। नो, एक टाइम था पहले, awareness of mental health was very less. So anyone would have an issue, अरे ये पागल है. That taboo was there. But thankfully now, and due to contribution of professors, academicians, doctors, and people like you, it is now broken. That taboo has broken completely. And could you just throw some light on depression? बहुत लोग सोचते हैं कि depression मतलब उदास हो गए, sad हो गए. किस बात की तकलीफ थी भैया? He had everything going for him. Why was he so depressed? So they don't get to understand कि डिप्रेशन, क्लिनिकल डिप्रेशन, वो आप बताएंगे बेहतर कि वो अलग है, अलग किस्म के डिप्रेशन होते हैं। जी बताइए प्लीज। द प्रॉब्लम ये जो मेंटल हेल्थ का है ना, ये इमोशंस हमारे नॉर्मल में भी होते हैं, तो एक कंटिन्यूम होता है। तो हम सैडनेस से लेके डिप्रेशन तक जाते हैं। क्लिनिकल डिप्रेशन इज सिवियर, इट्स द दूसरा एक्सट्रीम है सैडनेस का। ऐसे ही हैप्पीनेस है, तो हैप्पीनेस में भी ये नहीं है कि इसका भी एक एक्सट्रीम है। मैनिक फेजेस, जब आप केवल एक ही इमोशन में ही रहते हैं, तो क्लिनिकली वो भी हो जाता है। तो कुछ भी चीज़ का, जो चीज़ मैं ना बहुत सिंपल वे में बताती हूँ कि जो भी चीज़ है ना, जिस भी इमोशन से हम डील नहीं कर पाते, वो हमें ओवरवेल्म कर देता है, तब हम क्लिनिकल साइड में चले जाते हैं। जब तक हम कोप कर पा रहे हैं, जब तक हम इमोशन के ऊपर हैं, तब तक हम नॉर्मल हैं। अगर जब हम ओवरवेल्म हो जाते हैं, हमें लगता है हम डूब गए इसमें, तब हम क्लिनिकल साइड में थोड़ा-सा चले जाते हैं। बहुत मैंने राइट, ओवर सिंप्लीफाई करके करा है, बिकॉज़ इंट्रिकेसीज़, क्लासिफिकेशन, इन सब की भी चीज़ें हैं, अपना एक सिस्टम है, बायसनेस है, वो है, तो मैं सिंपली कर रही हूँ क्योंकि यही है। चीज़ें नॉर्मल नॉर्मल भी होती हैं, देन एक्सट्रीम हो जाती हैं। सेम कंटिन्यूअम सेम ही है ह्यूमन इमोशंस का। इसलिए ज़्यादातर लोगों को समझ ही नहीं आता है कि कब वो लाइन पार ही हो गई। होते सडनली जस्ट बंदा पार कर लेता है। राइट। वो नहीं कर पाता, लेट्स टॉक हेल्प नहीं अबाउट। सीख करता जी, या लेट्स हेल्प टॉक। नहीं पहुँचती। सॉरी। राइट, जी। Let's talk about suicides, and there are so many depressions, there are so many cases of people just going berserk. So is it that every person who commits suicide has a mental problem? देखिए, मेंटल प्रॉब्लम नहीं हम लेंगे, प्रॉब्लम को हम साइड में रखते हैं। जो भी बंदा सुसाइड करता है, ही हैज़ टू हैव समथिंग इन हिज माइंड जहाँ पे वो कोप नहीं कर पा रहा है। कुछ थॉट्स ऐसे हैं, तो सुसाइडल थॉट्स भी कई तरह के होते हैं। देयर आर पीपल जिनका सेल्फ हार्म के थॉट्स आते हैं। वो सुसाइड नहीं करते लेकिन सेल्फ हार्म करते रहते हैं। ठीक है, देयर आर सम पीपल जो सुसाइड करते हैं, और सुसाइड के भी कई कारण हैं। एक तो डिप्रेशन है, दैट इज मेजर। रॉबिन विलियम्स का डिप्रेशन था। बट कई बार Right, जो यंगस्टर्स हैं, एडोलेसेंट्स, वो गुस्से में भी करते हैं। व्हेन यू फील सो डिफीटेड और इतना गुस्सा आता है, तो कई बार गुस्से में भी हम एक्शन ले लेते हैं। तो वो एक टाइम होता है कि दैट इज हाउ वी सो जो आप कह रहे हैं कि मेंटली तो हम स्टेबल नहीं होते हैं इस सब के चीजें लेने के। वी डोंट, बिकॉज अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हैं, आप उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट सोचते हैं, लेकिन कई बार हम उतना देख ही नहीं पाते, उतनी दूर हमें लगता है वी आर लॉस्ट, और हम हमें होप ही नहीं दिखता है। तो सुसाइड का कारण ये है कि व्हेन यू डोंट हैव एनी होप, आपको लगता है कि कुछ भी चीज है, देयर इज नो होप, कुछ चीज ठीक नहीं होगी, एंड देन यू थिंक इट इज बेटर टू गो। बट तीसरे काइंड का सुसाइड है, विच इज असिस्टेड सुसाइड या यूथनेसिया। वो है कि माई लाइफ, आई मेक द चॉइस एंड दैट्स फॉर अदर पीपल। कई कंट्रीज एक्सेप्ट कर रही है, बट वो इस दायरे में नहीं आता है। ये है। no, we've heard cases of people jumping off the roof somewhere of a multi of high rise or shooting themselves. So लोग कहते हैं पता नहीं कि ज़हनी तौर पे कुछ दिमागी तौर खराब हो गया होगा. So how far is it true? Like, people who have taken their own lives. How far is that true? दैट इज ट्रू। दिमाग खराब नहीं होता है, दिमाग में चल रहे होते हैं थॉट्स, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि हमें लगता है, जनरली हमारे अभी भी दिमाग में दिन में तो हमारे कम से कम 2 लाख थॉट्स आते हैं। और कई तो ऐसे आते हैं, गुस्सा आता है, हमारा मन करता है, अच्छा वी आर ड्राइविंग, गुस्सा आ रहा है, मन कर रहा है उसको, वो ऐसे कर रहा है, उसको 2 थप्पड़ मार दो, पर हम नहीं करते, हम एक्ट आउट नहीं करते। सुसाइड में कई थॉट्स आते हैं, हम सबकी लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं यार दिस इज ऑल यूजलेस, और आइडिएशन तो होता ही है,
एवरीबडी नोबडी इज देयर जिसका कभी सुसाइडल आइडिएशन नहीं हुआ होगा, कभी होता है लाइफ में, पर हम एक्ट नहीं करते। पर जो सुसाइड करते हैं वो एक्ट कर जाते हैं, एंड इट इज नॉट के वो हेल्प के लिए रीच आउट करते हैं, सुसाइड से पहले वो सिग्नल्स देते हैं और फिर ही करते हैं। तो जो भी है इन अ वे यस मेंटली वो बहुत डिस्टर्ब्ड होते ही हैं, यू नो वट एवर इज देयर। उनको लगता है कि और कोई होप नहीं है। होप बहुत बड़ा वर्ड है। अगर हमें लगता है कि कोई भी नहीं है, कोई हमें जानेगा भी नहीं, पहचानेगा, मतलब कोई मुझे सपोर्ट ही नहीं देगा, मेरा कुछ भी नहीं है। जैसे कई केसेस हैं जहाँ पे फाइनेंशियली वो जो फैमिली थी इतनी डेट में थी कि उन्हें लगा कि कोई हेल्प ही नहीं होगी, सब तो सबने ही यू नो दे किल द चिल्ड्रन, एंड दोनों हस्बैंड वाइफ ने भी कर लिया। तो कारण होते हैं, बट इट इज होपलेसनेस, डिप्रेसिव थॉट्स एंड होपलेसनेस दैट लीड्स टू दिस। That is एकदम okay. That's you put a यू lot of things in नो perspective. Gee, gee. दिस इज अ वेरी आई एम गिविंग अ वेरी साइकोलॉजिस्ट पर्सपेक्टिव। आम लोग कहेंगे अरे उसके दिमाग में क्या हो गया था, दिमाग में खराबी हो गई थी। खराबी कुछ नहीं होती है, चीजें वही हैं खराब। हम उसको कहते हैं जब हमें लगता है अरे मैं मेरे कंट्रोल में ही नहीं रह रही चीजें। इट्स लाइक दिस यू नो कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि हमें पता है मुझे टाई पहननी है, ये है, पर अगर मुझसे टाई बंद ही नहीं रही, रोज बनती है, अब नहीं बंध रही, वो नहीं हो रहा, मेरा मन नहीं कर रहा है, तो फिर वो हो जाता है। तो इफ इट इज मैंडेटरी कि मुझे टाई पहन के जाना है और मैं खोल के फेंक के आऊंगी, तो आप कहेंगे इसको क्या हो गया है। तो मेंटल हेल्थ का भी ऐसा ही है कि हमें पता है इतनी सैडनेस सबकी लाइफ में होती है, सैडनेस, लेकिन जब वो एक्सट्रीम में चली जाए कि हम उसके बियॉन्ड देख ही नहीं पा रहे कि अरे मैं इसको कैसे डील करूंगा, और चाहे सिचुएशन नॉर्मल हो, ये सब ना पर्सनल परसेप्शन पे बेस्ड है। रियलिटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम कभी भी रियलिटी को नहीं देखते। जो हमारे दिमाग की रियलिटी है हम उसके साथ जीते हैं। इसलिए आप देखते हैं कई लोगों को इतने सुंदर दूसरे कहते रहेंगे उनको आप बहुत सुंदर हो, बट दे विल नॉट बिलीव, क्योंकि उनके मन में हाँ उनका हाँ मैं देखा उनका ऐसे ये I have been in the glamour world as well, you know, तो मैंने मॉडलिंग भी करी है, थिएटर भी किया है, फिल्में भी करी हैं, टीवी वेब सीरीज, तो मैंने बहुत सुंदर लोग देखे हैं who are not aware। तो उनके जहन में मे बी समथिंग देयर, सम स्कार, someone has told them, someone has made them believe कि तुम खूबसूरत नहीं हो भाई। ऐसा हाँ है क्या? जी। ऐसा ही होता है। आपको बचपन में किसी ने बोला होगा, जब हम वैलिडेट नहीं करा होगा तो हमें लगता है हम तो वी आर नॉट ब्यूटीफुल, कभी हमारे ये मोटे हैं, कभी वो है, ज्यादा बाल अच्छे नहीं है, ये अच्छा नहीं है। हम अपने आप को वो करते ही नहीं है, वी कीप सीकिंग वैलिडेशन। फिर एक सर्कल होता है और हमें इट हैपेंस क्योंकि हमें अपने ऊपर हमें वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ही नहीं कि हम कुछ सोचें अपने बारे में अच्छा। और यही यहीं से ट्रबल शुरू होती है। दीज आर Right. थिंग्स that lead to lot of sadness, depression, clinical depression, and then maybe suicide also. Just a couple of days back, you know, I spoke to a former army general who happened to have turned 100 years old. Oh, General wow. S.M. Sharma, yes. And he was very mentally alert. He could recall and recollect every single thing. And his voice was as sharp as ever. And very, very alert. Very alert. उनके छोटे भाई का मेरा I have had the honor of interviewing his younger brother who was in his 90s. He was the Oh, okay. former Indian Army chief in 1988. आप सोचिए, Okay. एंड इनफैक्ट जनरल वी एन शर्मा उनके भाई जिनका मैंने इंटरव्यू किया था, जनरल एस एन शर्मा की मैं बात कर रहा हूँ, ही वाज Okay. वेरी अलर्ट, वेरी 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 अलर्ट, टच वुड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, यू नो। एंड मेजर सोमनाथ शर्मा थे परमवीर चक्र फ्रॉम द आर्मी, हाँ, हिज रियल ब्रदर, उनके छोटे भाई मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र यंगर ब्रदर। सो आई हैव हर्ड ऑफ अल्जाइमर्स एंड डिमेंशिया होता है लोगों को, एंड at the same time they is a service chief. I was in touch with him. I was to interview him, but then after some time he just forgot who I was. And then I spoke to his daughter over the phone, and she told me that ऐसे ऐसी बात है. So some people say that if you keep reading, if you keep your mind occupied, तो वो आपको अल्जाइमर डिमेंशिया शायद नहीं होगा. How far is that true? दैट इज वेरी ट्रू कि अगर आप माइंड को अलर्ट रखेंगे, और उसमें माइंड को अलर्ट इन द सेंस जो सुडोकू है, रीडिंग है, वर्ड पजल्स हैं, बिकॉज क्या होता है कि यू हैव टू कीप एक्टिवेटिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन जो है ना, क्योंकि हर एक पार्ट से, सो रीडिंग, राइटिंग, ऑल ऑफ दैट, प्लस ये पजल्स,
कैसे भी पजल्स खेल लो, गेम्स खेल लो और आप अलर्ट रहोगे तो अल्जाइमर्स ये नहीं, नोबडी कैन प्रिडिक्ट कि होगा नहीं होगा, लेकिन देखिए फॉरगेटिंग तो होती है, लेकिन अल्जाइमर्स इज अ डिफरेंट डिजीज. सो फॉरगेटिंग भी होगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी याद रहेगी, लॉन्ग टर्म याद रहेगी, शॉर्ट टर्म में हम थोड़ी थोड़ी चीजें भूल जाएंगे, सुबह क्या खाया ब्रेकफास्ट में, ये नॉर्मल है. लेकिन अगर आप एक्टिव रहें, मेंटली एक्टिव रहें, फिजिकली भी रहें, तो चांसेस बहुत कम हो जाता है ऑफ गेटिंग दीज, ऑफ एमनीशिया या सेनाइलिटी जिसे हम कहते हैं कि सेनाइल हो रहे हैं, है ना. सो वो सब कम हो जाता है, अल्जाइमर्स को भी अवॉइड कर सकते हैं. Is it genetic as well? या देयर इज अ फिजियोलॉजी अल्जाइमर्स के लिए, इट इज, दैट हैज अ, मतलब दैट हैज अ फिजियोलॉजिकल ओरिजिन. मगर फर्ज करिए अगर जेनेटिक है और अगर किसी पेरेंट्स को हुआ था, सो द ऑफस्प्रिंग, व्हेन द ऑफस्प्रिंग इज say about roughly about in his 70s or 80s, but very active, mentally active, plays golf, reads, and so are there any chances, or the chances are bleak in that case? See, Major, we have had the plasticity of the brain. Latest studies are showing the plasticity of the brain. कि the अगर आप बहुत agile है ना, and mentally agile, then one part can take over the function of the other. So to this, I will say the research is going on, and there is no conclusive evidence that अगर आपके father को हुआ है तो आपको भी होगा. Diabetes कितने लोगों को होता है, but good lifestyle, everything you delay it, you postpone it, and sometimes you don't even catch it. एक को हो जाएगा, Right. दूसरों को नहीं होगा. So there is, I always believe कि हर चीज में hope होना चाहिए. The body, and there are cases of people जिन्होंने कैंसर को केवल अपने विल पावर and lot of other things alternative methods से क्योर करा है. So I believe in that, I believe in hope, and I believe in the plasticity of the brain. It can work and it can do wonders. Right. And So, provided you because, also believe in it. doctor. So, like I mentioned about the general who's just turned 100 years old, and he had a very big bash, and his family had flown off from different countries. Your extended families hai. Some लोग आए थे, and it was a big, huge bash. And one more service chief who was talking about, he in his early 60s, actually, I would say, and he's also been an ambassador. He's been like, he's doing really well. He's a very fine senior officer, and a lot of respect, a lot of regard. But देखो ताजुब ये हुआ that आप chief रहे हैं, आप ambassador भी रहे हैं, और आप you've been busy. But then can that happen Yes, when you're so because busy? yeah, see, because post retirement, he may be doing things, but कुछ चीजें होंगी जो mentally इतना switch over नहीं हो रहा होगा. तो डिमेंशिया तो देखिए सबको होता है. I mean, हम सब भूलने लगते हैं after a certain age or this, but we can be alert, and I think it is also individual differences. I cannot, ऐसे लग रहा है कि दोनों आर्मी के हैं, सब चीजें हैं, बट वो दोनों की लाइफस्टाइल में फर्क होना होगा, तभी इनको 60s में ही हो गया है डिमेंशिया, अल्जाइमर्स जो भी है. एंड समटाइम्स अल्जाइमर्स, नॉट ऑल ऑफ अस कैन फाइट जेनेटिक्स आल्सो, और सो समटाइम्स फिजियोलॉजिकली है, वो है, आप ससेप्टेबल हो और आपको हो भी जाता है. एंड प्रोबेबली उतना his lifestyle may not have what the person who's 100 years and still very alert, touch wood, has. So tell me, dementia, Alzheimer's, can young person also get it? Alzheimer's, yes, because it is if heredity and it is genetic. But dementia is age related. Dementia is age related. And what's the difference Forgetting. between dementia and Alzheimer's? See, dementia is you slowly start forgetting because the brain cells start aging and they start that is the way. Dementia can be reversed also, but Alzheimer's is, if it sets in, then Alzheimer's can be delayed also. But once Alzheimer's sets in, then it is, because it's also, it's the changing, the brain cells are changing, the structure of the brain cells is changing. It's like a slow deterioration of the brain cells. Dementia is also deterioration of the brain cell, but dementia is more like forgetting. It's on that dimension. Alzheimer's becomes, because of the physiological aspect and everything,
dementia, you will not forget your family, you won't forget many other things. Those will be there. Alzheimer's, it is a complete wipeout of the memory. Let's talk about schizophrenia. I believe that people with schizophrenia, they believe in certain thing and they're so convinced कि ऐसा है तो ऐसा ही है. And when they talk to themselves, apparently they're not talking to themselves. Apparently they are imagining someone to be sitting there and they're talking to that person and that person responding back. Am I right in understanding this? Yes, absolutely. So Okay. आप एकदम सही बोल रहे हैं. स्किज़ोफ्रेनिया है वो एक क्लिनिकल डिजीज है, और अगर आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से पूछेंगे तो वो सबसे ज्यादा सब घबराते हैं उससे. Because we know schizophrenia is very difficult to क्योर, बट स्किज़ोफ्रेनिया इतने तरह की भी हैं, लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया के मेजर जो सिम्पटम्स है ना, वो है कि वो अपने आप से बातें करते हैं, क्योंकि वो हैलुसिनेट करते हैं. उनको चीजें दिखती हैं जो औरों को नहीं दिखती. उनको कुछ आवाजें सुनाई देती हैं. किसी भी तरह के हैलुसिनेशंस हो सकते हैं कि स्किन पे मेरे कोई चल रहा है, ये है. और डिल्यूजन्स होते हैं कि प्रेसिडेंट मैं तो प्रेसिडेंट हूँ, या सब मुझे मारने आ रहे हैं. तो उनको तो दिमाग में ये है सब मुझे मारने आ रहे हैं, सो अकॉर्डिंगली दे विल बिहेव, वहां छुप जाएंगे. तो दो चीजें हैं, डिल्यूजन्स एंड हैलुसिनेशंस, जो बड़ा कैरेक्टराइज करती हैं. डिल्यूजन्स ऐसे हैं कि उनको मतलब टू गेट डू अवे विद देम इज अ टफ टास्क. और उनको जो हमें लगता है, मैं आपको यही कह रही हूँ ना, रियलिटी इज हाउ वी इमेजिन इट. रियलिटी डजंट एग्जिस्ट देयर. तो मोस्ट ऑफ अस, हमारा क्या होता है कि आपको भी मेरे को भी, हाँ मैं लैपटॉप पे हूँ या ये स्क्रीन दिख रहा है, तो यू विल अग्री, आई विल अग्री, ठीक है. हैलुसिनेशन में क्या होता है कि वो इतना इंडिविजुअल है और किसी को तो दिख नहीं रहा है, केवल उन्हीं को दिख रहा है. तो हमें पता भी नहीं वो सही है नहीं है. जैसे कई बार तो ये होता है ना, देवी चढ़ गई, या जो हमारे सियांसेस विद द डेड हैं, या बाहर हम कहते हैं गोस्ट, एंड इतनी मूवीज बनती हैं, दे आर ऑल सर्टेन वेज. तो हमें पता नहीं ना, हमें भी नहीं दिख रहा भूत, तो वो हैलुसिनेशन ही होते हैं कई बार. अब अगर आप पैरानॉर्मल में बिलीव करते हैं तो आप कहेंगे नहीं है, वो स्पिरिट्स एग्जिस्ट और वो सब, लेकिन हैलुसिनेशन है. कई बार मास हिस्टीरिया जिसे हम कहते हैं, या मास हैलुसिनेशन हो जाता है. तो वो, आई मीन, आई एम नॉट गोइंग टू टच ऑन दैट, बट एक इंसिडेंट था कि सबको एक तरह का दिख रहे थे इन पेरिस, इन सो वो मास वो हो जाता है हैलुसिनेशन. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको दिखते हैं, और क्योंकि आपके लिए वो रियलिटी है. अगर मुझे दिख रहा है यहाँ पे, सपोज मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे मेरे घर में तो इविल स्पिरिट्स आ गए, डेविल यहाँ रहता है, तो मैं तो डर के उसी तरह बिहेव करूंगी, बिकॉज फॉर मी इज लिविंग देयर, सो आई विल नॉट ईट. अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सांप बैठे हुए हैं, तो मैं उसी से डर के, आई विल नॉट टच दिस थिंग, आई विल स्क्रीम. वो, और कई बार कॉन्वर्सेशंस भी होती हैं, somebody is talking to you. What you have said is very true. मैं आपको 20 साल पहले की बात बताता हूँ. 2003, I was a young left in that time, posted at the line of control 30 meters away from the Pakistani post. And we used to use mosquito nets at night in our bunkers. Mosquito nets not because के मच्छर बहुत थे, मच्छर तो खैर थे ही थे, but main reason was because क्योंकि सांप बिच्छू बहुत थे वहां पे, to protect ourselves. So there used to be times we were living amongst snakes and these wild creatures. And it's like you may not be, a person may not be schizophrenic, but ऐसा आम बात होती है, आपने सांप देखा रियल लाइफ में, अभी ओए आपने बचा आप सांप से, and then even if someone touches you, you will imagine, oh, सांप आ गया, अरे ये हो गया. You see a rope, you will imagine it to be or you see a wire, अरे सांप. So what would you say for that, जी? No, those are also delusions only, ना. कई बार आपको लगता है, but it's not, but वो hallucination ही है भैया. You saw the snake, है तो नहीं रियलिटी में, लेकिन वो आपका टेम्पररी है. जब कुछ भी चीज फॉर अ लॉन्गर पीरियड हो जाए, तो फिर देन यू आर अवे फ्रॉम व्हाट द रियलिटी इज. थोड़े टाइम में आपने आंखें खोली, आपको लगा रही ये तो रस्सी है. लेकिन अगर आप यही कहते रहे ये तो सांप है, भाग जाए, रात को सोए नहीं, देन, और अगर क्लिनिकली हम देखें तो 3 weeks एंड मोर के सिम्टम्स होंगे, तो वो दे देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं schizophrenia. Right. And lastly, जैसे I हम would simplify. like to ask you about bipolar. What is exactly bipolar, and how is it different than having a split personality or a dual personality complex, which people would like to know? There are two different categories of मतलब I'm talking about, देखिए जैसे फिजिकल डिजीजेस का क्लासिफिकेशन है ना,
वैसे मेंटल डिजीजेस का है। डिफरेंस ये है कि फिजिकल डिजीजेस में वायरस, बैक्टीरिया, यू हैव टेंजिबल थिंग्स। हियर हमने जो डीएसएम बना है वो बेस्ड ऑन सिम्टम्स ही है, ठीक है। सो ये है। तो स्प्लिट पर्सनालिटी इज व्हेन जो जो स्प्लिट पर्सनालिटी है वो बहुत अलग है। जो पहले मैं बाइपोलर बता देती हूँ। बाइपोलर इज डिप्रेशन। तो आपके डिप्रेशन कैन बी टू काइंड्स। या तो आप एक फेज आता है जिसमें आप सैड ही रहते हो, ठीक है, you're depressed, eyes are drooping, everything, you can't even move, you're that depressed। तो वो यूनिपोलर डिप्रेशन है। बाइपोलर ये होता है कि आपकी साइकिल चलती है। तो कभी तो जब आप मैनिक, दो फेजेस होते हैं, डिप्रेशन एंड मैनिक, ठीक है। तो जब आप मैनिक फेज में आते हो ना, आपकी हाइपर एक्टिविटी लेवल इतनी होती है कि यू डोंट स्लीप फॉर डेज, यू कीप टॉकिंग, ब्लैबरिंग, यू ईट सो मच, कुछ भी जो डिफरेंट, कुछ भी हो सकता है, सब में सब नहीं होते। एंड यू आर रनिंग ऑन द स्ट्रीट, यू आर डूइंग दिस, यू आर सो एक्टिव। और अगर आप स्ट्रीट में नहीं जा रहे तो आप इतने एक्टिव हो कि आप दिन रात काम करते हो, कीप वर्किंग वर्किंग वर्किंग। कैन यू कम इनटू दैट फेज वे यू, मतलब एकदम आप डिप्रेशन में जाते हो, आप बैठ जाते हो, आप बेड से नहीं उठना चाहते, कुछ नहीं, जस्ट दिस। सो दिस इज बाइपोलर। ये एक कैटेगरी है। जो स्प्लिट पर्सनालिटी है उसमें हमें लगता है कि मतलब मेरे अंदर दो तीन, जैसे डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड, वो एक स्टोरी थी। या फिर हम रात और दिन, एक मूवी आई थी कि रात, जो हमारी फैंटेसीज होती है ना, अब मैं लाइफ इन कॉन्शियसली तो मैं लिव नहीं कर सकती। सो समटाइम्स इतना अनकॉन्शियस हो जाता है कि आई बिकम टू पीपल। मैं दिन में कुछ और, रात को कुछ और, या ऑफिस जाते हुए कुछ और हो जाती हूँ वो। लेकिन वो लोग ना रियलिटी से जब रियलिटी से उनका ब्रेक हो जाता है तब वो साइकोसिस में चले जाते हैं। बट अदरवाइज दे आर एबल टू मैनेज दिस, डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड की स्टोरी है, द मेनी फेसेस ऑफ ईव है। और हमारे, आई डोंट नो, एक टाइम पे एक मूवी हमने तो देखी थी, रात और दिन, नरगिस की आई थी। तो दिन में तो she is a very nice housewife married to I think Rajkumar, पर she always wanted to wear the gowns because she was very influenced by this neighbor of hers who was a Christian. So रात को she used to go and in the clubs wear the dresses and एकदम different. And then she would forget one, जब एक होता था तो एक ही personality at a time. But कई बार ऐसा देखा है कि, and these are real case histories, आजकल ये ज्यादा नहीं आती, क्योंकि ये तब होता था स्प्लिट पर्सनालिटी, जैसे जब देवी चढ़ जाती है हमारे, पहले होता था, अब नहीं, अब इतने ज्यादा केसेस नहीं आते। पोजेशन होता है कि वो कह रहे हैं तो लोग लोग कहते हैं कि मेरे शी इज पोजेस्ड, वो सब क्योंकि तब रिप्रेसिव सोसाइटी थी। तो कुछ चीजें करने के लिए हमें अपने आप को ऑल्टर ही करना पड़ता था। देखिए कुछ भी चीज ना, माइंड इज वेरी कॉम्प्लेक्स, और इट इज, जो हम करते हैं उसमें से ओनली 1% कॉन्शियस है, बाकी सब सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस है। और हमारा सर्वाइव करने के लिए, फॉर ह्यूमन बींग्स, हम सोशल एनिमल्स हैं। हमारे लिए फिजिकल प्रोटेक्शन इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन जितनी हमारी, कि हमारे थॉट्स, हम मेंटली प्रोटेक्टेड रहें। सो ये सब माइंड का ही खेल है। बट टू अंडरस्टैंड दैट, एंड our scriptures, everybody used to say that mind, that is the power. We have not even explored the power. Mind can take you to one depth and take you to heaven, Wow, you know. very well said by you. And lastly, I would like you to throw some light on the organization that you have founded, that you are heading right now, that you are. If you can tell us that, please. Okay, so I have started, it's a startup, and I felt the need to get into this field because it's called the Indic Center for Psychological Wellness and Holistic Health. Because I felt that, awareness, capacity building, and we want to take mental health to everybody. जितना, जैसे मुझे एक मॉडल बहुत अच्छा लगता है, एक समय में हम कहते हैं कि जैसे गोइंग टू द डेंटिस्ट, बट एक समय में ना आपको, आई मीन मेरी लाइफ टाइम में मैंने देखा है कि गोइंग टू द जिम या वीएलसीसी या काया, ये टैबू था। इट वाज़न्ट नॉर्मल, स्पोर्ट्स, प्लेइंग स्पोर्ट्स वाज नॉर्मल, बट जिम, हाँ, एंड टुडे देखिए जिम एकदम नॉर्मल है। तो वन्ना लूथरा, ऑल ऑफ दीज पीपल, सो इवन जो पर मेंटल हेल्थ और मेंटल उसका इतना है स्टिग्मा कि अभी भी कोशिश करते हैं, बट वी आर ट्राइंग कि इट शुड बी एज नॉर्मल। एंड लाइक कॉलगेट की चेरी ब्लॉसम की लाइन थी ना, शायद आपको याद होगा, डिड यू चेरी ब्लॉसम योर शूज टुडे? सो आई थिंक इट शुड बी, डिड यू गो टू योर काउंस, डिड यू स्पीक टू योर
counselor today, or did you speak to your psychologist today? It should be like that, क्योंकि fitness is main thing. नॉट जब आप बीमार हो जाते हो ना, तब तो फिर बहुत स्कोप कम रहता है, बट कैचिंग इट अर्ली, असेसिंग कि हाँ आई एम रीचिंग दैट स्टेज, या मैं मुझसे ये टॉलरेट नहीं हो रहा है, या आई कांट कोप विद दिस प्रॉब्लम, रीच आउट, स्पीक आउट, ईच वन शुड रीच वन, एंड दैट्स व्हाट वी वांट. जी अरे वाकई में. अच्छा, नाउ पीपल इफ दे वांट टू रीच आउट टू यू, व्हाट वुड बी योर सोशल मीडिया हैंडल्स इफ यू कुड जस्ट शेयर देम प्लीज? Okay, so I mean I go by the my social media handle. You can, my website is there, which is psychologist chavi chavi.com, and you can reach out to the Index Center. Again, psychologist chavi.com is from where if you reach out there you can. ये हमारी वेबसाइट है theindiccenter.com. और अगर ईमेल चाहिए तो connect@indexcenter.com. Am I too Thank you. fast? No, perfect. You are perfect. I mean, thank you. That's enough. People know. And बहुत कुछ है आपसे बात करने के लिए. I understand you are busy as well. But एक आखिरी क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे. ये क्योंकि मेरे लिए बहुत पर्टिनेंट है. देखिए मैंने ना actually I became a TEDx speaker and then an international TEDx speaker and then from there I became a motivational speaker and then from there people start saying oh motivational speaker है तो ये counselor भी होगा तो ये psychologist भी होगा. तो इस हालांकि मैं उनमें से कुछ भी नहीं हूँ. But that is the way people perceive it as. And I had gone for a TEDx talk once to Cuttack, and one man dragged me. He said, "Nani, after backstage, we were desperate to meet me. He said, I would like you to come home and just counsel my wife." I was like, "Hello, brother. I'm not a counselor, man." Okay, so just tell us what's the difference between a psychiatrist, a psychologist, a counselor, and a motivational speaker. All right. So जो साइकेट्रिस्ट हैं वो तो आपके MBBS MD डिग्री वाले हैं, वो आपको मेडिकेशन दे सकते हैं. अगर उन्होंने काउंसलिंग और साइकोलॉजी का कोर्स करा है देन दे कैन डू काउंसलिंग, अदरवाइज वो खाली मेडिकल. तो इसलिए आप अगर वहाँ जाते हैं और आप अपना लंबी कहानी बताना चाहते हैं, वो नहीं सुनते. उनके पास वो कहते हैं मेडिकेशन लो एंड दैट्स द आंसर. जो आपके मोटिवेशनल स्पीकर हैं दे आर सो पावरफुल, जैसे आप हैं, कि यू नो we all get motivated by something. So the speaker motivates by what he brings to the table. Okay, that's it. The whole thing जो आपका content है, the way you deliver, that is more important because you bring your persona there. बहुत सारे हैं लेकिन सबसे हम नहीं होते. But then you bring the powerful persona that you get. People want to role model. People feel yes, this is the answer, right? So that is how. जो आपके साइकोलॉजिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट इज अ ब्रॉड टर्म, एनीबडी जिसने बैचलर्स करा है साइकोलॉजी में और मास्टर्स करा है तो वो साइकोलॉजिस्ट कहलाते हैं. जो आपके काउंसलर्स और साइकोथेरेपिस्ट साइकोलॉजिस्ट जो इस एरिया में जो क्लिनिकल है, वो जो आपके हॉस्पिटल सेटिंग्स में साइकियाट्रिस्ट के साथ बैठते हैं और उनका मेनली मेडिकल मॉडल फॉलो करते हैं, जिसमें वो डायग्नोसिस असेसमेंट वगैरह करते हैं. टेस्टिंग है उनका, मेंटल स्टेटस के आप कहाँ हो, कितने बीमार हो, ये सब. जो आपके काउंसलर्स हैं वो नॉर्मल जो स्ट्रीम है हमारी, जो बहुत बीमार नहीं है, नॉर्मल स्ट्रीम है, उनके लिए डील करते हैं. एंजाइटी, आपके एवरीडे लिविंग के भी, और कई चीज़ें हैं जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है आपको, तो आपने दवाई ले ली, फिर आप थोड़े बेटर हो गए, रेमिशन में आ गए, तो फिर आपको काउंसलिंग और सपोर्ट की ज़रूरत है. तो ये सारे यही करते हैं. काउंसलिंग जो है सबसे बड़ा फील्ड है और वी आर ट्रेन्ड इन अ सर्टेन मेथड. ठीक है, तो आपको बैचलर्स करना पड़ता है साइकोलॉजी में एंड मास्टर्स मिनिमम डिग्री. तो जो डॉक्टरेट है वो और है. सो हमारा जो ट्रेनिंग है ना वो इस तरह है कि आपका थॉट्स, आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड करना, आपको अंडरस्टैंड करना एंड देन सजेस्ट ऑल्टरनेटिव्स व्हिच यू कैन फॉलो, क्योंकि ठीक तो आप ही करोगे, लेकिन हम वी कैन रीफ्रेज एंड होल्ड यू, गिव यू दैट स्पेस. जो भी है, 3 थिंग्स जो प्रोबेबली सभी करते होंगे, बट विच आई बिलीव इज दैट कॉन्फिडेंशियलिटी है, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स से हम बात कर सकते हैं बट कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रहती. सो एक अननोन से बात करना ईजी होता है, और आपके फ्रेंड और आप तो सेम इमोशन में होते. तो अगर इट्स लाइक अगर सपोज आई हैव लॉस्ट माई डॉग, यू ऑल्सो, यू आर माई फ्रेंड, यू नो द पेन, हम दोनों रोएंगे, उसमें किसी का भला नहीं होता. लेकिन जो काउंसलर है वो आपको अंडरस्टैंड करेगा, लेकिन सोल्यूशन ही विल टेल यू हाउ टू कोप विद दैट लॉस जो है. सो ये डिफरेंस है फ्रेंड में और काउंसलर में. और काउंसलर जो है, कई तरह की थेरेपीज हैं.
सो वी प्रोवाइड यू कॉन्फिडेंशियलिटी, एक सेफ स्पेस है जहाँ आपको जो भी चाहिए आप एक्सप्रेस कर सकते हो, और अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस और नॉन जजमेंटल स्पेस होती है। सब लोग जज करेंगे, फैमिली भी जज करती है, यहाँ पे आप, क्योंकि हमारे थॉट्स कई तरह के आते हैं, एंड इज इन दिस यू कैन जस्ट एक्सप्रेस, क्योंकि वी अंडरस्टैंड कि कई चीज़ें तो थॉट्स से आइडिएशन है, कई चीज़ें हैं जिसको हम वी हेल्प यू, we help you choose what and how you can become a better version, or whatever, not a better version also, how you can become more relaxed and be happy with yourself. You know, the thing is Right. de-stress and live comfortably Right, Doctor. with Doctor, it yourself. was seriously so enlightening and so wonderful speaking to you. I sincerely thank you from the bottom of my heart for your time, and it was great being in conversation with you. And बिल्कुल अगर ईमानदारी की बात कहें तो बिल्कुल I feel like learning more from you, and बिल्कुल log off करने का दिल नहीं कर रहा है बिल्कुल भी. I reckon that you are busy. Thank you very much. Take Thank care. you so much. Jai Hind. Jai Hind. Thank you.